یسوع مسیح ہیکل میں ہیں، ہیکل سے باہر نکلتے ہیں اور یسوع مسیح کہہ دیتے ہیں اس پتھر پر پتھر باقی۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا یا سنتے بھی ہیں، لیکن میں اس سارے پیغام کو جو مسیح نے جس موقع پر جس سینس میں بات کی ہے اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی مسیح نے جو اتنی بڑی بات کر دی کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یہ سننے میں آسان ہے لیکن اس کو کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ بڑی مضبوط ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 24واں باب پہلی آیت سے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا یسوع مسیح کو ہیکل کے ساتھ عمارتیں نظر نہیں تھی آ رہی تھی نا؟ یسوع مسیح بھی ساتھ ہی ہے، لیکن شاگرد دکھاتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ یہ سچویشن کیا ہے؟ اور ایک سوال کیا گیا ہے یسوع مسیح کے ساتھ، جیسس کرائسٹ کے ساتھ سوال کیا گیا، اور ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہم نے نوجوانی کی عمر میں سنا ہے، اور آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع نے کہہ دیا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، لیکن ہم شاید اس کی گہرائی میں ڈیپتھ میں نہیں گئے۔ شاگرد ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ہیکل میں گئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہیکل کا رقبہ کتنا تھا۔ ہیکل کو سمجھنے کے لیے کہ جس کی بابت یسوع کہہ رہا ہے، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ یسوع دے رہا ہے، اس چیز کا رقبہ کتنا ہے، حدود اربع کتنا ہے، کتنے ایریے کے اندر وہ بنی ہوئی ہے، اور جس کی بابت مسیح نے کہا، اور شاگرد حیران ہو گئے۔ 36 ایکڑ اس کا رقبہ تھا ہیکل کا، 36 ایکڑ، 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، 36 ایکڑ رقبہ اور 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے۔ یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1.5 مربع کے قریب یہ احاطہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ 36 ایکڑ کی جو زمین تھی یہ ساری فلیٹ کر کے اس پر ہیکل تعمیر کی گئی تھی۔ سلیمان بادشاہ نے جو ہیکل بنائی تھی وہ 17 ایکڑ کے احاطے کے اندر موجود تھی۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر تھی جو سلیمان بادشاہ نے ہیکل تعمیر کی تھی۔ سلیمان کی ہیکل کو برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد زربابل نے ایک ہیکل بنائی اسی جگہ پر، اسی شان و شوکت میں، لیکن لوگ اس بات کو کہتے تھے کہ زربابل کی بنائی ہوئی ہیکل کی شان و شوکت اتنی نہیں ہے جو 36 ایکڑ میں بنائی گئی ہے، اس ہیکل کی شان و شوکت زیادہ تھی جو 17 ایکڑ میں بنائی گئی تھی۔ اٹ مینز کہ سلیمان کی تعمیر کی گئی ہیکل کا شان و شوکت کے لحاظ سے درجہ بلند ہمیں نظر آتا ہے۔ کئی 100 سال گزرنے کے بعد ہیرودیس کے زمانہ آتا ہے، اور اس زمانے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ مقابیوں کا دور آ جاتا ہے۔ اب ہیکل کا جو رقبہ تھا یا جگہ جو تھی یہ اوپر سے نیچے کی جانب سلوپ تھی۔ ہیرودیس نے کیا
क्या किया, उस स्लोप के सामने एक दीवार लगाकर उसके ऊपर मट्टी डालकर उसको फ्लैट कर दिया, यानी उसको बराबर समत में कर दिया, और उस पर फिर उसने हैकल बनाई। हेरोदिस ने सुलेमान की बनाई हुई हैकल जो 17 एकड़ में थी, इसको उसने बढ़ाकर 36 एकड़ के रकबे में कर दिया, और ये बहुत बड़ी जगह थी। टोटल रकबा जो था वो 36 एकड़ का था, और जिस जगह पे हैकल बनी थी वहां पर हैकल तामीर की गई थी। 60 हाथ लंबी, 60 हाथ चौड़ी, ये वो प्लेस थी टोटल। और इसमें जो होली ऑफ होलीज था, यानी पाक तरीन मकाम, उसका अखाता जो था वो 20 बाय 20 का था। 60 बाय 60 हाथ टोटल उसका रकबा जहां पर हैकल तामीर थी, और पाक मकाम जो था ये 40 बाय 20 हाथ का टोटल रकबा था। टोटल यदि हिस्ट्री है जिदे बारे च यसू मसीह कह रहे हैं, इस पर पत्थर बाकी। यसू मसीह की हर बात के पीछे एक बड़ा लॉजिक है, बड़ी बात और बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। हेरोदिस ने ये क्यों बनवाई, जिसकी बाबत मसीह कह रहा है। हेरोदिस बादशाह जो था ये माहिर था बिल्डिंग्स बनाने में, और उस वक्त आप अंदाजा लगाएं, ना कोई क्रेन थी, ना कोई बड़ी मशीनरी थी जब ये हैकल बन रही है, और इस तरतीब से बनी हुई थी कि ये इनके गरूर का हिस्सा बन गई। हैकल जब बनाकर इन्हें दे दी गई, अब शागिर्द जो हैं यसू को दिखा रहे हैं। अब जो हैकल थी ना, उसके बाहर ग्राउंड था और साइडों पर इमारतें बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत आलीशान। यसू मसीह को इमारतें दिखाई जा रही हैं हैकल से निकलकर कि ये कितनी खूबसूरत है। यसू मसीह ने क्या कहा, देख के इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। हेरोदिस ने जब ये हैकल बनाई, इसकी मुखालफत हुई थी, क्योंकि पहली हैकल सुलेमान की तबाह हुई, बर्बाद हुई। जरबाबल ने इसको जब बनाया था तो ये तबाह नहीं थी हुई, बल्कि हेरोदिस ने इसे ढाकर दोबारा बनाया था। हेरोदिस चूंकि बिल्डिंग बनाने का माहिर था और इसके पास तजर्बा था, इसने यहूदियों से कहा कि मैं तुम्हारी हैकल को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूं। यहूदियों ने कहा अगर तुमसे ऐसी हैकल ना बन पाई तो जो हमारे पास मौजूद है हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे, इसलिए तू रहने दे। एक ऑप्शन सामने मौजूद हुई, और ऑप्शन ये थी, हेरोदिस ने कहा, अगर हेरोदिस बेसिकली ये दुमी था, इसके वालिदैन कन्वर्टेड थे, ये कट्टर यहूदी नहीं था, नस्ली तौर पर ये यहूदी नहीं था कि ये अदूमी था, और ये नस्ली तौर पर यहूदी नहीं था, लेकिन इसके माँ बाप कन्वर्टेड थे, ये वहां से आई हुई एक नस्ल थी। हेरोदिस इसने कहा अच्छा ठीक है। हेरोदिस ने कहा अगर मैं बाहर की जेड़ी दीवार आज तक कायम है ना, ये ओदों दी बनी जे, सुनो यदि हिस्ट्री की है। इसने कहा अगर मैं बाहर वाली दीवार जो है आपकी बाउंड्री वाल उसको बना दूं और ऐसी बना दूं कि ये ढाई ना जा सके, तो तुम मुझे इजाजत दोगे। यहूदियों ने कहा सबसे मुश्किल काम है बाउंड्री वाल बनाना, अगर ये बना बैठा तो फिर हम इसे परमिशन कर देंगे, हैकल बना दो। और हेरोदिस बादशाह ने उस जगह को, उस दीवार को जो आज भी गिरियाजारी यहूदी लोग करते हैं, ये वही दीवार है, ये वही बनाई हुई आज तक उसी दीवार की या उसी जगह की अलामत है कि ये उसी ने बनवाई थी। भाई पीछे बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है? क्योंकि मेरे यीशु ने कह दिया था पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहूदी अब दोबारा हैकल बना ले। नहीं बनेगी, नहीं बन सकती जब तक मेरा यीशु ना कहे, आपका यीशु ना कहे, दोबारा वो चीज तामीर नहीं हो सकती। मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्यों नहीं होगी, और जब होगी वो कैसे होगी। होगी, एक दफा बनेगी हैकल,
लेकिन अभी नहीं। जो उस दीवार के अंदर जो अभी भी मौजूद है, उसका हेरोदीस ने जो एक पत्थर लगवाया था उसकी 45 फुट लंबाई थी। और जिदे बारे यसू कह रहे हैं ना कि इस पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, आप अंदाजा लगाएं वो बड़ी कितनी है, वो मजबूत कितनी है। कितने फुट लंबाई? 11 फुट चौड़ा, 45 फुट लंबा, 11 फुट चौड़ा, तकरीबन आप कह लें 16 फुट ही लगा लें अंदाजन, 16 से 17 फुट कितना ऊंचा। इन्हू यसू कह रहा है पत्थर ते पत्थर बाकी। ये मैं आपको इसलिए हिस्ट्री सिखा रहा हूं या बता रहा हूं कि आप इसको समझें। और कहा जाता है एक पत्थर का वजन 600 टन का वजन होता था, यानी 6 लाख केजी। वेखो जी, ना उदो क्रेन, ना उदो तुहाडे कोल ट्रक, ना वड्डे वड्डे बाई व्हीलर, ना तुहाडे कोल कोई मशीनरी। अब अंदाजा लगाएं ये पहाड़ों से पत्थर तोड़ के लाते कैसे होंगे। ये जो बना रहे हैं हैकल या दीवार, वहां से लेकर आना और उसे फिक्स करना, 45 फुट लंबाई, 11 फुट चौड़ा, 17 फुट ऊंचा। कितने लोग लगे होंगे जो इस पर काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं इतने बड़े बड़े पत्थर जो थे वो लगाए गए थे। हेरोदिस इसकी शानो शौकत को बढ़ा रहा है और जरबाबल जो है उसका दौर खत्म हुआ। ये दूसरी हैकल, यानी कि इसको दूसरी हैकल कहा जाता है, लेकिन ये तबाह नहीं थी हुई, तीसरी हैकल तबाह हो गई थी जो आज तक उसके बाद दोबारा नहीं बन पड़ी। अब इस इमारत को बनाने के लिए कितने लोग लगे? 10,000 मजदूर इस हैकल को, जिसकी बाबत मसीह कह रहा है कि इस पर पत्थर बाकी ना रहेगा, जिसकी बाबत आपका यसू, मेरा यसू, पावरफुल यसू कह रहा है, ये इमारतें देखो ये सारी गिर जाएंगी, एक इमारत कायम रहेगी और वो जो मुर्दों में से जी उठा है वो कायम रहेगा और वो यसू नासरी है। हालेलुया। हैकल के अंदर मजदूर कितने लगे हुए हैं? हुण पाक तरीन मकाम च ते आम मजदूर भी काम नहीं कर सकता, ख्याल नहीं किया जाता है। 100% रिसर्च है। 1000 काहिन काम कर रहे सन उस जगह ते जिथे पाक तरीन मकाम ते पाक मकाम दी जगह सी। जिहड़ी दीवार बनाई सी ना, असी तुसे जेड़े विचारे नहीं फिरदे हले भी, असी ओ दीवारों भी बाहर, उत्तों असी विचारे, उत्तों दीवारों भी बाहर, ना कोई साडा नसबनामा, ना कोई सानू अपनी जान पहचान सानू रखिया सी, उस तो बाहर सारे नालों एंड दे उत्ते। लेकिन फजल ये हुआ कि यीशु मसीह ने वो दीवार ढा दी अपने खून के बायस और हमारी बाप से मुलाकात करवा दी हमेशा के लिए। इस दीवार को ढाना सिर्फ यीशु का काम था। हालेलुया। हम जितने बेचारे थे, हमें जिंदगी का चारा मिल गया और उस चारे का नाम यीशु मसीह नासरी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। अब हमें बेचारा बन के नहीं फिरना। हमारा चारागर सो पावरफुल, उसने कह दिया हजारों साल पहले इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा भाई। हैकल को बनने में कितना अरसा लगा? वेरी इंटरेस्टिंग। कितने अरसे च बनी होनी है यह हैकल नूं बनदियां? ख्याल किया जाता है 86 ईयर्स लगे थे। ये तामीर होती जा रही थी, यीशु मसीह भी उस वक्त थे। ये तामीर होते हुए दी एंड होते हुए इसको तकरीबन राउंड अबाउट 86 ईयर्स दरकार थे। सन 66 में उस वक्त ये बन रही थी या अभी मुकम्मल नहीं थी हुई या बनी हुई थी, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मेंटेनेंस का काम और ज्यादा जारी था। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है।
सन 66 में ये बनी और सन 70 में इसको तबाह कर दिया गया। कितने साल रही हैकल? 4 साल का टोटल दुरानिया, टोटल 4 इयर्स के लिए ये बनी। उसके बाद हेरोदिस की वो सन 66 में कायम की हुई या बनती जा रही जो हैकल थी वो सन 70 में जाकर डिमोलिश हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। अब ये पहाड़ से पत्थर निकालते कैसे थे? ये उस जगह के ऊपर सुराख करते थे, चारों कोनों पे जिस पहाड़ से पत्थर लेना होता था उसके चारों कोनों पर ये सुराख करके वहां पे उस लकड़ी को रख देते या ठोक देते थे। उसको रखने से पहले उन चारों सुराहों के अंदर पानी भर देते थे। अब जब पानी भरते थे तो वो लकड़ी जब ऊपर से ठोकते थे या धंस देते थे तो वो लकड़ी अपनी जगह बनाने के लिए फूलती थी। वो जैसे ही फूलती थी लकड़ी तो जो उस पत्थर की बेस होती थी वो अपनी जगह से उखड़ आती थी। एकदम से कड़क करके लकड़ी के फूलने के इव्ज जब पहाड़ की वो जगह अपनी जगह छोड़ती थी तो वो उखड़ कर ऊपर हो जाती जगह और फिर वो लोग उसको वहां से लेकर हैकल तक आते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। आप अंदाजा लगाए वो कितने माहिर लोग थे। लकड़ी फसाई, पानी भर के लकड़ी फूली, लकड़ी ने जोर लगाया और पत्थर जो है वो उखड़ गया और उस पत्थर को लाके हैकल की दीवार में फिक्स किया करते थे। ये जब बात हो रही है ना, ईदों पर लोग जो हैं वो आए हुए थे उस जगह पर, छोटे छोटे शहरों तो गाँव तो अपने अपने रिश्तेदारां लैके यहूदी दे फसा ते जमा सन। जदों दा वाकया होता ये था, जेड़े रबी कोल ज्यादा तालीम होते को ज्यादा लोग, जब यसु मसीह 12 साल की उम्र में हैकल में गए थे क्या कर रहे थे? रबी से, हाँ, ये ईद फसा पर जो इवेंट होता था वहां पर इनके ऊपर लागू था कि बच्चे सवाल करें। आज छोटे छोटे जो बच्चे होते थे 12-13 साल की एज के अंदर, वो अपने रबी के पास बैठते और उस रबी के पास रश लग जाता और वो उससे सवाल जवाब करते। लेकिन एक दिन उस्तादों का उस्ताद उस हैकल में चला गया और एक रिसर्चर लिखता है बाकी जितने रबी थे वो मुंह देखते रह गए कि सबसे ज्यादा रश यसु मसीह के पास लग गया। और एक रिसर्चर कहता है लोग कह रहे थे कि हमें कलाम की बातें सुना और समझा, हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन उस हैकल के अंदर हैकल बनाने वाला, हैकल में उतरने वाला खुदा मौजूद हुआ और उसके चारों तरफ उस्तादों के उस्ताद यसु नासरी के चौगिर्द रश ही रश लगा हुआ था। और इस सिनेरियो के अंदर यसु मसीह शागिर्दों को जवाब दे रहा है कोई यसु ना बड़ा उस्ताद? रबी ओदे कोल नासते ने। यसु ने कहा पत्थर पर पत्थर बाकी। अब ये सारी बातें करने के बाद हैकल से बाहर जा रहे हैं, शागिर्दों ने सवाल उठा दिया। यसु ने कहा पत्थर पर पत्थर बाकी। उस जमाने की सबसे मजबूत बिल्डिंग हैकल थी। सुलेमान बादशाह दी हैकल दा एरिया कितना सी? 17 एकड़। और ओ जेड़ी हैकल सी ओ चौरस सी, जेड़ी सुलेमान दे दौर च सी। जो ज़ुरबाबेल ने बनवाई ये स्लोप जगह थी, ऊपर से नीचे और फिर आगे जैतून का पहाड़, नीचे कदरून की वादी थी। जेड़े दुआ च यूज करते थे ना, खुदावन हम तेरी हैकल में आए हैं, कित्थों पढ़ आए हो? बाइबल हमें ये नहीं बताती हैकल हमारे लिए है। ए दुआ च जेड़ा कहे ना खुदावंद आज हम तेरी हैकल में आए हैं, ओनू बाद चो बहा लेना, ओनू पुछ लेना कि भाई तू कित्थों पढ़िया? हैकल ते बर्बाद हो गई है, लेकिन चर्च कभी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इसका सारी यसु मसीह नासरी है, वो कायम है, चर्च भी कायम रहेगा। हम चर्च का तस्वुर मानते हैं। हैकल हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुण एक मुसीबत उत्थे पै गई सन 76 च। एक ग्रुप सी ज़ेलतीसी, एक ग्रोह सी जिन्हों गुरीला फोर्स किया जाता सी। ये बगावत करते थे।
ज़ेलोतीसी जो फिरका था जेड़ा अज दा असीं कह सकने आ, ये ग्रुप था ज़ेलोतीसी जो उस वक्त का गोरिल्ला फोर्स ग्रुप था। ये करते क्या थे, ये रोमी सिपाही जहां पर देखते थे ये रोम के सिपाहियों को मार देते थे। रोम की हुकूमत थी। ये ज़ेलोतीसी फिरका जो है, इसके बारे में सन 68 के अंदर रोम ने ये कह दिया कि अगर इस फिरके का मुकम्मल खात्मा ना किया गया तो ये हमें मार देंगे, खत्म कर देंगे। इनके बारे एक पूरी ग्रोह ने फैसला कर लिया कि हम इसका खात्मा करके रहेंगे, ज़ेलोतीसी फिरके को। अब ज़ेलोतीस ग्रुप जो है वो रोमी सिपाहियों को कत्ल कर करके इस नहज पे ले आया कि इस हुकूमत ने फैसला कर लिया। और यूसिफर द वॉर ऑफ ज्यूस के एक बुक में लिखता है, इसकी किताब का नाम है द वॉर ऑफ ज्यूस। अगर पढ़नी हो तो पढ़े इसको जाके, उसमें ये सारी लड़ाई का जिक्र है। इतना कत्लो गारत हैकल में हुआ। अब जो बात यसू ने की है उसका रिजल्ट निकलने लगा है। ज़ेलोतीसी फिरके का झगड़ा किससे शुरू हो गया? रोम के सिपाहियों के साथ। अब एक तरफ गोरिल्ला फोर्स है, टेररिस्ट है, दूसरी तरफ रोम की हुकूमत है, और यहूदियों की और ज़ेलोतीस फिरके की और रोम की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये यूसिफस अपनी बुक के अंदर ये बहुत बड़ा तारीखदान है, और हिस्ट्री के अंदर और बाइबल की तारीख के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स इसकी बात को मुस्तनद समझते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल का एक तारीखदान है। यूसिफस इसने फिर एक किताब लिखी और हमें वहां पे बयान मिलता है कि हैकल के अंदर लड़ाई बाहर से होती होती हैकल के अंदर आ गई, और हैकल का जो सहन था हमें तारीख ये बताती है कि वहां पर लोग कहते हैं, यूसिफस लिखता है, इतनी लाशें थी, इतना खून था कि वहां पे जितना पत्थर था उस पत्थर के ऊपर खून ही खून और लाशें ही लाशें थी। वहां से खून की नदियां बहना शुरू हो गई। और यूसिफस लिखता है, एक जर्नल ने सिर्फ उस वक्त रोम के एक जर्नल ने कहा लड़ाई हैकल से बाहर रखो, लेकिन उसकी भी ना सुनी गई। और यूसिफस कहता है लड़ाई अब अंदर तक जाएगी। उन लोगों को मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि यहूदी इस बात की गैरत रखते थे, अगर हैकल नहीं तो हम नहीं, हैकल हमारा गुरूर है, हैकल हमारा प्राउड है। अगर हैकल हो गया हमारा गुरूर जाता रहेगा, हमारी शानो शौकत जाती रहेगी। ये हैकल को बचाने के लिए सारे हैकल में जमा हो गए, और इनकी लाशें जो हैं वहां पर बिखरी पड़ी हैं, और वहां पर खून ही खून और पत्थरों के अंदर उस कत्ल का खून दाखिल होना शुरू हो गया। अभी ये जंग चल रही थी कि अंदर जहां पर इनके नस्ब नामे थे या जहां पर इनका रिकॉर्ड मौजूद था, जहां पर इनके ज़रूफ थे, वहां पर अचानक से तारीख ये बताती है आग भड़क गई। जैसे ही वहां पर आग भड़की, ये अब सोचना ये शुरू हो गए हम आग बुझाएं या इनसे लड़ाई करें या फाइट करें। ये एक भयानक तरीन सीन जो है क्रिएट हो गया। की करना चाहिए सी उन्होंने, ना हैकल बचा सके ना आग बुझा सके। आग ने पत्थरों के अंदर, तारीख ये बताती है, इतने बड़े बड़े सुराख कर दिए। क्या किन्ने सी इस पत्थर पर पत्थर बाकी क्या किन्ने सी? गल किवें जाके ते केड़े सन च पूरी हो रही है? सन 66 तो बाद 68 प्लान किया गया, सन 70 दे विच टोटली डैमेज। अंदाजा लगाओ, जेड़ा उत्थे सोना सी ना हैकल दे अंदर, वो सोना अग ना पिघल के, यूसिफस की किताब में लिखा है कि वो सोना उन पत्थरों के सुराहों में से बाहर जाता रहा। हैकल बर्बाद, अग लग गई, नस्बनामे उड़ गए, उन्हां दे खून, जमीन नजर नहीं आ रही, खून ही खून ते नदी बह रही है खून दी, लाशां बिखरियां ने। यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा।
शागिर्द चूंकि गलील से थे और बैकवर्ड एरिया से थे, ये गलील के रहने वाले थे सारे शागिर्द, ये बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते थे। इन्हें पता नहीं था बड़ी बिल्डिंगें होती क्या है। इन्होंने जब वो सारी खूबसूरती देखी, इन्होंने जब वो सारी शानो शौकत देखी, तो यीशु नूं कहने ने कि वेख किड्डी सोहनी कोठी आ। अब ये सोच आई कैसे? शागिर्दां दे अंदर केड़ा सवाल होएगा? यीशु मसीह नूं कहंदे ने तेरे आने का वक्त, और बाइबल मुकद्दस में से ही बहुत सारे सवाल हैं जो यीशु मसीह पर किए गए। शागिर्दों ने सवाल पूछे भी। लिख लीजिए इस बात को, जहन के अंदर जहन नशीन कर लीजिए। बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा आंसर अगर दिया है यीशु मसीह ने, तो इस बात का दिया था जब शागिर्दों ने कहा था कि तेरे आने का वक्त क्या होगा। बाइबल मुकद्दस में किसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब है तो वो मत्ती की अंजील 24वां बाब 25वां बाब है। सबसे बड़ा आंसर बाइबल मुकद्दस में इस इवेंट के बारे में दी गया, और उसकी वजह क्या है? असल में शागिर्दों को यीशु की दूसरी आमद का पता नहीं था। शागिर्दों को यीशु मसीह की दूसरी आमद का मालूम ही नहीं था। 3.5 साल नाल रहे। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कहीं पर भी दोनों आमदों को अलग अलग पेश नहीं किया गया। पुराने अहदनामे में चर्च का तस्वुर भी नहीं है। कितनी बातें मैंने बताई हैं? 3। पहली बात, शागिर्दों के माइंड के अंदर यीशु मसीह की दूसरी आमद का तस्वुर ही नहीं है। दूसरी बात, पुराने अहदनामे में इन दोनों आमदों को डिफरेंट वे में यूज नहीं किया गया, इनको इकट्ठा लिखा गया है। माल की किताब के अंदर यीशु मसीह जिंदा भी हो गया, सोच उधर ही अटकी हुई है। कहते हैं क्या तू आज ही या अभी इस्राएल को बादशाही अता करेगा? यानी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट का तस्वुर उनके अंदर नहीं है। सवाल क्या है कि तेरे आने का वक्त क्या होगा? पुराने अहदनामे में इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा। दोनों आमदों का इकट्ठा जिक्र है। शागिर्द पुरानी सोच को लेकर बैठे हुए हैं कि यीशु आ गया है पहली आमद में ही, और अभी ये हमें इस्राएल की बादशाही अता कर देगा। असल यहूदा इसकरियोती नूं मसला ही ऐसी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੀ? 300 ਦਿਨਾਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬਟੋਰੋ। सोच क्या है? सोच सेकंड कमिंग की है ही नहीं। सेकंड कमिंग यानी दूसरी आमद की सोच ही नहीं है। अब यहूदा इस सोच में फंसा हुआ है, यीशु ने केड़ा आना है, ये अभी आ गया है, अभी ये चंद महीनों के बाद, 1 साल के बाद हमें बादशाही अता कर देगा, रोम की हुकूमत से छुड़ा लेगा और ये हमें बादशाही अता करके दी एंड माल पिटोरो, माल जमा करो। इन्हें एंड है कीता कि यीशु मसीह भागेगा समझ गया ओ ते 300 मेरे हाथ नहीं आया, लेकिन हुण जेड़ा टाइम है ना यीशु नूं फड़ाओ ते यीशु ने केड़ा दोबारा आना है या यीशु मसीह ने केड़ा दोबारा जमीन उत्ते आके कदम रखना है। ते इसलिए 30 जेड़े मिलते ने ना ओ ते बैग च पाओ ना ते लगो साइड ते। सोच पीछे क्या है कि यीशु मसीह अब दोबारा। फिर यीशु मसीह ने अमाल की किताब दे विच जवाब दिता। मसीह ने कहा तुम उन वक्तों और मियादों को जानना तुम्हारा काम, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम यरूशलेम, फिर तुम यहूदिया, फिर तुम सामरिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और ये यीशु जल्द आने वाला है। ये हमारे लिए पैगाम ये है। हालेलुया।
यीशु जल्द आने वाला है। अब मैं आपको शागिर्दों की सोच और मसीह की पहली और दूसरी आमद के दरमियानी अरसे को वाज़े कर दूं। अब शागिर्दों के माइंड के अंदर चर्च है ही नहीं, उन्होंने दे कि यीशु मसीह होनी बादशाही अता करे। अब यीशु मसीह की पहली आमद चरनी में और दूसरी आमद जब कोहे जैतून पे आएगा, दोनों के अरसे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने चर्च को कायम कर दिया। शागिर्द ये समझ रहे हैं बादशाही अभी अता हो जाएगी, सानू छड़ देगा गैर को मानू नहीं। अब पहली आमद और दूसरी आमद का जो दरमियानी अरसा है, असी ओदी पैदावार हाँ, हम यीशु की वो पैदावार हैं जो इस टाइम पीरियड में उभर कर सामने आए हैं। यीशु मसीह हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। पुराने अहदनामे में कोई चर्च का तस्वुर नहीं है। हमारा तस्वुर मसीह की आमद, उसके जी उठने के बाद आया है। बस अब से जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। ओदा सोचते पे सन यीशु ने क्या नहीं रहेगा। ऐस अरसे दे विच एक नवा काम होएगा और चर्च तामीर होएगा जिन्हों कोई नहीं ढा सकेगा। ओदा सर मैं होवांगा, ओदे बदन दे हिस्से कलीसिया होएगी और हम हमेशा कायम रहेंगे। ये हमारे लिए ऑनर की बात है। आमीन। कैन यू इमेजिन? शागिर्दां ने जदों क्या सोचिया असी केड़ी गल करने आ ते यीशु केड़ी गल दा जवाब दिंदा है। यीशु नूं फिर तफसीलन समझाना पिया। यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 2 लिखा है, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा। अच्छा हुण इत्थे खुदा के इंतकाम थले लाइन लगा लो। क्या यशायाह लिख रहा है? अब ये दोनों को ना इकट्ठा करके लिख रहा है, ताकि खुदावंद साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इजहार दूं। यानी ये फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग दोनों का इकट्ठा ही जिक्र कर रहा है। अंडरस्टैंड करें जरा बात को, समझ गए हैं? यीशु मसीह के आने और उसकी सेकंड कमिंग पे जो इंतकाम है उसके बारे में लिख रहे हैं। और सब गमकीनों को दिलासा दूं। हुण आ जाओ एदे ही कंपैरिजन दे विच लूका दी अंजील च। अच्छा यहाँ पे खुदा का इंतकाम वाजे कर दिया गया है, लेकिन जदों यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह अपने उस इंतकाम दा जिक्र नहीं करेगा। बाइबल ध्यान नाल पढ़नी है ते समझनी है। ते खुदा दे इंतकाम दा जिक्र है, लेकिन यीशु मसीह इंतकाम दा जिक्र नहीं करेगा। आओ लूका दी अंजील चौथा बाब 18वीं आयत तो यशायाह दोनों बातों को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा बयान कर रहा है। लेकिन लूका की अंजील में यीशु मसीह 18वीं आयत, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई पाने की खबर, कुचले हुओं को आजाद करो और खुदावंद के साले मकबूल की फिर वो किताब। कैन यू इमेजिन? अगेन यीशु मसीह ने की कीता? इंतकाम दी गल नहीं की थी। फिर वो किताब बंद करके यशायाह क्या कर रहे हैं? दोनों बातों को अंडरस्टैंड। अब यीशु मसीह जब बात करेगा और इंतकाम दी गल, फिर वो किताब और हादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी कि ये अंजाम की बात नहीं कर रहा, ये जिस काम के लिए आया है, ये साले मकबूल की मुनादी करने के लिए आया है। यीशु मसीह ने चैप्टर क्लोज। अभी उसे मरना है, अभी उसे जी उठना है, अभी चर्च को तामीर करना है और उसके बाद जब कलीसिया को वो महफूज कर लेगा, इंतकाम ते अंजाम बाद दियां गल्लां ने। यीशु नूं केड़ा आके पढ़ावे? सब दियां अखां लगियां कि यशायाह दा हवाला, उत्थे ते इंतकाम दा भी जिक्र है ते यीशु मसीह ने ते इंतकाम वाली किताब
बंद। जब तक यसू हमें सिक्योर नहीं कर लेगा उस वक्त तक बड़ी मुसीबत का दौर शुरू नहीं होगा। यसू मसीह यसाया दी की गल कर रहा है, इंतकाम की गल हो रही है। एक आएगा उत्थे दोवां आमदां दा जिक्र, इत्थे यसू मसीह ले फिलहाल क्लोज। उस दौरानिए विच की होएगा, मसीह दे मरण ते जी उठण दे विच कलीसिया कायम होएगी। फिर कलीसिया गवाह बनेगी कि इस यसू ने कहा था पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। रसूल चले गए, नबी चले गए, ईमानदार चले गए। अब अगर कोई चीज कायम है खुदा के कलाम के बाद तो वो चर्च है। अब चर्च मुनादी करे, चर्च बताए कि इस यसू ने कहा था कि अब पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। हैकल को उठा दो तो वो 3 दिन में खड़ा कर देगा। ये यसू मुर्दों में से जी उठा, इसकी मुनादी हमने करनी है।